میرے اللہ عز و جل کے لیے، اور سب تعریف اول اور آخر نبی محمد رسول اللہ اور سب تعریف خاندان اہل بیت پنجتن اور خلف راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، پاک بزرگان دین۔ اس مجلس کے اندر آج ہم تمام اکٹھا ہو کر اس جگہ پر بیٹھنے کا مقصد صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ جو کچھ بیان ہوتا ہے ایک سوئی کے ساتھ سنو اور اس کے اوپر عمل کرو اور دوسروں کو یہ تبلیغ کرو۔ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میرے پیر مرشد سینے پہ سینہ جو بیان کرتے ہیں اور بزرگان دین کی کتابیں پڑھ کر میں سن کر اور بزرگان دین کے بیان سن کر میں یہ بیان کرتا ہوں۔ اس کے پر اگر اس کے درمیان میں کچھ نہ کچھ فرق آ گیا، کچھ نہ کچھ فرق آ گیا، کچھ نہ کچھ میرے زبان سے نا اتفاقی سے دوسری بات نکل گئی، فوراً میری اصلاح کرو، انشاءاللہ میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ میں علم والا نہیں، میں بھی تمہارے جیسا سیکھنے والا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ ہے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید المیلاد بھی آ رہا ہے۔ نبی کے میلاد کس واسطے کرتی؟ وہ نبی کے واسطے جتنی مخلوق ترس گئی تھی دیکھنے کے لیے، یہاں تک انبیاء بھی یہ تمنا کرتے تھے اس نبی کا چہرہ دیکھیں۔ اس لیے آج ان کی ٹاپک پہ بات کریں، کیوں ان کو اتنا پسند کرتے؟ میرے نبی کو ہر مخلوق پسند کرتی تھی۔ دو جہاں، سات زمین سات آسمان کے تمام کی مخلوق میرے نبی کے انتظار میں تھے۔ میرے نبی کا چہرہ دیکھنا، وہ کس طرح بنیا، وہ کس طرح بن گیا، یہ تمام کی چیز ہمیں معلوم ہے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے جاننے سے پہلے ہم یہ جاننا کیوں صحابہ میرے نبی کے اوپر فدا ہوتے تھے۔ اپنے صحابہ اپنے ایک دور میں میرے نبی صحابہ کے پیر تھے، صحابہ کے آج بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر، ہمارے بھی رہبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے آئیڈل ماسٹر ہیں۔ ان کو دیکھ کر سب بھی فالو اپ کر لیں۔ اس دور میں صحابہ اور تمام لوگ میرے نبی کو کیوں فدا ہوتے تھے، ان کے اوپر کیوں اپنا جان کو دینے کے لیے بھی تیار تھے؟ کیا میرے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے بھی ویسے، وہ ہستی تھے بھی ویسے۔ اب ان کی محبت کے اوپر کوئی بھی نہیں پسند کرتے، ایسا فلانا آدمی فلانا مخلوق والا جو کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو وہ قبول کر لیتا تھا کلمہ پڑھنے۔ یہ خود میرے آقا تاجدار مدینہ مدینے سے ہجرت کر کر تھوڑی بستی چھوڑ کر نکل پاتے تھے، ایک بزنس کے واسطے نکلے۔ جوڑ میں سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تمام صحابہ بھی تھے، کبار صحابہ بھی تھے۔ ان لوگ پورے بھی جوڑ میں ڈالے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہاں پہ ایک بچہ ایک عورت تھے، عرب کنٹری والے تھے، مہمان کو نوازش کرتے تھے۔ مہمان کو وہ کوئی ذات والا بھی ہو، مسلمانی چھوڑ کو نہیں، یہودی بھی وہاں مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو وہ درمیان میں نجالک تھے، صحابہ بھی جوڑ میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی جوڑ میں تھے۔ جیسا ہی ہو گئے تو درمیان کی دھوپ کے شدت کی دھوپ کی وجہ سے اب ان کو سوچ لگ گئی، پانی پینے کچھ کھانے کے لیے بھوک، سفر میں بہت سست ہو گئے تھے۔ درمیان میں ایک گھر، ایک کنارے میں ایک گھر اجڑا ملا، تو وہاں جا دروازہ کٹکھٹانے پوچھنے لگے، آپ ہمیں سفر میں مہمان ہیں، تھوڑا ہمیں کھانے کے کچھ ملتا ہے کیا؟
اس جگہ پر ایک عورت تھی، ایک بچہ تھا. خاص کر یہ عورت یہ بچہ نعت خان کو بہت پسند. نعت خان والے زیادہ یہ یاد رکھو یہ عورت کا نام. یہ وہ عورت ہے جس کے گھر کو گئے تھے، بولنے لگی عورت وہ آپ کدھر سے ہی معلوم نہیں، مگر ہمیں یہاں یہ درمیان میں بیٹھ کو ہی سب مہمان نوازی کرنے کے لیے ہمارے گھر کھول کر کھلا پلا کو بھیجتے تھے، مگر تمہاری نصیب ایسی ہے کہ آج کچھ بھی نہیں کرتے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ عورت کوئی بھی نہیں تھے، ان کا نام ام مامود. ام مامود، وہ عورت کا نام کیا ہے؟ ام مامود. وہاں دیکھے جانے کے بعد آقا بھی جوڑ میں تھے. جیسا آقا وہ گھر کے اندر قدم رکھنے کے بعد بولنے لگے وہ گھر کے اندر فضیلت الگ چینج ہوگی. جیسا فضیلت چینج ہوگی تو پوچھنے لگے آقا نے اگر کچھ نہ کچھ ہے، پوچھنے لگے آقا کچھ نہ کچھ ہے. وہاں پہ ایک بکری تھی، بکری بہت ہی وہ تھن بھی نہیں بنائی تھی، کچھ بکری بن کو تھے. بولے وہ بکری ہے کیا؟ سکی بکری تھی، پیٹ اندر چل گیا تھا. وہ تو ہاں وہ بکری ہے، اس میں وہ دودھ کی دینے والی بکری نہیں، پر وہ ماں سب رہتی ہے. بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، طلحہ بھی تھے، بڑے بزرگان تھے جو کفار صحابہ تھے جوڑ میں بھی تھے. جو جا کر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ بکری تھوڑا لے لے، وہ بکری تھوڑا میرے پاس لے کے آؤ. بکری کے پاس گئے. جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس کے گھر کے اندر ڈگ رکھ کو ایک روم سے نکل کر وہ بکری تک جگہ، وہ گھر کے اندر ایک خوشبو پھیلی، وہ عورت کے اندر ایک نسبت پیدا ہوئی. یہ کون ہے شخص جس طرح میرے گھر کے اندر ڈگ رکھتے ہی میرے گھر کے اندر ایک خوشبو پیدا ہوئی، میرے گھر کے اندر برکت پھیل گئی، میرے گھر کے اندر نور ہی نور دس رہا ہر جگہ میں. جیسا ہی وہ قدم رکھتے گئے وہ بکری کے پاس دھیرے دھیرے جا کر کھڑنے سے بعد دیکھے اپنا ہاتھ سیدھا ہاتھ رکھ لو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ صحت کے لیے اور اس کے بکری کے تھن کے اندر دودھ عطا کر. میں تیرا آخری نبی، اول اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا ہوں. کیسے ہے اپنا اللہ کے پر گواہ دیتے ہوئے اپنا ہاتھ لے لو تھن کے پر، سب کے تھن تھے. جیسا انہوں ہاتھ رکھے تھن بڑا، جیسا تھن بڑا ہوگا پیر بھی چوڑے ہو گئے، بکری کے پیر چوڑے ہو گئے. بولنے مسکراتے بولنے لگے، اپنا مسکراہٹ چہرہ کو بولنے لگے ماں صاحب کو بولو کچھ کیا تو چیز ہے دیکھو دودھ مٹھا کر. جیسا ماں صاحب تھوڑے تھوڑے گھڑیاں دیے یا ہنڈیاں دیے، اس کو بھی دیے. جیسا آقا مٹھارتے گئے پورے ہنڈیاں بھرتے گئے، دودھ ختم نہیں ہوا. دودھ ویسا کہ تھن کا تھن ویسا ہی. جیسا مٹھارتے گئے پان دودھ بھرتا گیا تو بولنے لگے یہ کیا کرو پینے، آپ سب دودھ پی لو، سوچ سے بھوکے ہی سب پی لو. جیسا پی لو کر بولے تو آقا کو پوچھے ابو بکر آقا آپ پہلے. ابو بکر آ کے بولے آقا آپ پہلے پی لو بعد میں ہمیں پیتی. نہیں، میں وہ سخی ہوں پہلے امتی کو کھلا دوں بعد میں جیسا آقا بولنے لگے اے ابو بکر میں وہ ہستی ہوں پہلے میرا امتی کھانا ہے بعد میں کھانا. بعد پورے صحابہ پی لے. گھر میں وہ ماں صاحب تھے، ماں صاحب کا نام کیا ہے؟ ام مامود. یاد رکھو بہت بڑا درجہ ہے ماں صاحب کا، ام مامود. ابو مامود کی بیوی کا نام ام مامود. تو ان کو گھڑے پورے گھر کو دے ڈالنے کے بعد بولے وہ بچہ بھی خوش ہوگا اپنی ماں کے طرف. ماں امی جان یہ کون ہے؟ میں جا کر ہاتھ چھین کر آیا، امی جان میرے بدن میں ایک کشش پیدا. وہ بچہ بولے امی جان میں جا کر وہ ہستی کا ہاتھ چھین کر آیا، میرے اندر ایک کشش پیدا ہوگی. میری کشش ایسا ہے کہ میں ان کی طرف
और मेरा दिल चाह रहा है मैं हर हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूँ। बोलने लगे तो बेटा मेरा दिल भी ये गवाह दे रहा है, ये कौन है हस्ती मेरे घर के अंदर आकर जैसा कदम रखा मेरा घर नया घर के जैसा दिखने लगा, नूरी नूर। जैसे ही कदम रखते हर रूम के अंदर कदम रखकर बकरी तक गए, ऐसी खुशबू मुझे महसूस है मैं अब तक कभी भी नहीं सुनी। चेहरा ऐसा था मैं समझ में आया नहीं, तो वो एक चीज है, वो एक नाम दे दिए। हुजूर का नाम मालूम कर नहीं, यहूदी थे ना, हुजूर का नाम मालूम कर कौन नहीं किधर पूछे नहीं, वो अब ताराल करते आपने बोले रुखसत हो गए, निकल को चले गए, निकल को मदीने की तरफ रवाना होकर निकल को चले गए। जैसा मदीने की तरफ निकल कर चले गए, फौरन 1-1.5 के बाद उनके शोहर आए घर में, बकरियां निकालते हुए शोहर आए। शोहर जैसा घर के पास आए, ऐ वो उम्मे महमूद, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे बच्चों की अम्मी, आओ इधर। मुझे आज एक किस्म की महसूस हो रहा है घर के अंदर आने, कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ हुआ तो नहीं जी, क्या भी नहीं, मुझे एक साथ महसूस हो रहा है ये घर के अंदर एक खुशबू दिखती है, या कोई एक हस्ती आकर गया है, कोई एक ना कोई एक चीज आकर गई है, तो ये खुशबू मालूम करता है वो बहुत बड़ा हस्ती है। कुछ नहीं लगा, हाँ एक जने थे मेहमान के जैसे आए थे, उनको दूध नहीं था घर में, यहाँ पूरा था, मगर वो एक अजीब इंसान था, वो इंसान नूरानी इंसान था। वो इंसान की तरफ देख को मैं महसूस हो गई। बकरी के पास गए, बकरी के पास हाथ लगाते थन में दूध आना, दूध आते, हम तमाम चीजों को पीना, तमाम जितने भी उनकी जोड़ में थे साथ यहाँ पीने के बाद भी मेरे घर में घड़े भर कर रही। वो कौन सा हस्ती है? मेरे बच्चों की अम्मी, वो कौन है हस्ती जिस घर के अंदर कदम रखकर चल गया और उसका नाम मैं पूछी तो मुझे तो नाम नहीं है, मगर मैं नाम से दे रहा हूँ, वो मुबारक नाम है। वो जिस घर के अंदर कदम रखता है, जिस घर के अंदर जिसकी सूरत देखता है, जिसकी सीरत देखता है, जैसा उसके आंख किसी के ऊपर नजर पड़ गई तो वो एकदम फिदा हो जाते हैं उसके बाद। वो ऐसा हस्ती है, मैं तो उसके बारे में बोल नहीं सकती। पूछने लगे अबू महमूद ने पूछने लगे, ऐ मेरे बच्चों के अम्मी, वो किस तरह था, वो किस तरह था? तो बोलने लगे, यहां तक ये आकर अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये बहुत बड़ा मालिक, हमारा आका हमारे वास्ते मालिक है। हमारे वास्ते क्या है? मालिक ही। तो यहाँ जैसा उन्होंने दूध दे डाल कर निकल चले गए, पी ले चले गए, तो उम्मे महमूद ने बोलने लगे अपने शोहर को, वो कैसा रही मालूम है क्या? वो ऐसा एक चेहरा था, वो कसीरन वसीम है, वो कसीरन वसीम है, वो देखने के लिए भी ऐसा दिल तरसता है। कसीरन का माना क्या है मालूम है? वो कसीर, इतनी मोहब्बत वाला, उसे देखना जी चाहता है। वसीम है, एक बार देखे तो फिर देखना है, तो मगर कसीरन का माना है उसके अंदर, उसके जिस्म के अंदर हर आन और दूसरों की जैसा नहीं रहता, वो अलग रहता है, वो अनमोल चीज है। वो कसीरन है, वो वसीम है, इतना वसीम है कि उसे देखते ही जी भरता है, नहीं देखने के बाद फिर दिल गवा देता, अब एक बार चेहरा देखता तो अच्छा था, बार बार दिल चाहता है कि चेहरा देखना चाहता है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रही फिर, तो वो ऐसी चीज थे, जब उसके सामने जाकर मैं खड़कर दूध लेने गए तो उसके जिस्म से खुशबू आने लगी, ऐसी खुशबू मैं अभी तक सुनी नहीं थी। मेरे बच्चों के अब्बा, मैं ऐसी तक अब तक सुनी नहीं थी, ऐसी खुशबू है। वहां चल जाने के बाद तुम्हें महसूस कर रही है कोई बरकत वाला आदमी आकर गया है, तुम्हें भी महसूस कर रही, वो ऐसा चेहरा है। मैं जैसा नजदीक जाकर दूध उठाकर आई, दूध मांग कर आई, खाली डिस्टेंस के अंदर ऐसी खुशबू आई कि मैं समझ गई दुनिया के अंदर इस तरह खुशबू मैं अब तक सुनी। और बोलने लगे जैसा उनके चेहरा देखिए, उनकी बदन देखिए, ऐसी बदन थी आज तक दुनिया के अंदर इस तरह बदन बनकर नहीं है, आज तक मेरे आका के जैसा बदन बनकर नहीं था। तो पूछने लगे, अबू महमूद ने पूछने लगे अपने बीवी को, वो दिखता था कैसा, वो दिखने में कैसा था? पूछने लगे। मैं जब चेहरा उठाकर निगाह उठाकर देखने लगी छठे के ऊपर, जैसा मैं देखी वो चेहरे के सामने सूरज बेकार, सूरज का
जो रोशनी है ना, सूरज उनके चेहरे के ऊपर दिखता था। जैसा मैं चेहरे की तरफ तवज्जा करी तो धूप में मिठार नहीं कर, तो सूरज जो सूरज रोशनी देता, वो सूरज उसके चेहरे के अंदर दिखता था। तो हस्ती था कैसे? तो बोलने लग गया, पूछने लग गया, फिर पूछे तो चेहरे का कलर क्या था? ऐ मेरे बच्चों की अम्मी, वो जो मुबारक आया था हमारे घर के अंदर, उसका कलर क्या था, वो कैसा था? तो बोलने लगे 14वीं के चांद की नजर था, 14वीं के चांद का चेहरा था। ये मैं समझती चांद भी कमी है, ये मैं समझती चांद भी कमी है, क्योंकि वो इंसान के तलवे की धूल के बराबर नहीं है वो चांद। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे हैदरी या अली, अरे हैदरी या अली, अरे हैदरी या अली, या मीर आखरी, या मीर आखरी, या मीर आखरी, हजरत जी मकी मकी हजरत जी, हजरत जी मकी मकी हजरत जी, हजरत जी मकी मकी हजरत जी। और पूछने लगे उसकी आवाज कैसी है? वो माँ साहब को पूछने लगे अबू मोहम्मद ने, उसकी आवाज कैसी है? तो बोलने लगे उन्होंने, आवाज इस तरह थी, वो आवाज में एक सुनहरी आवाज थी, वो आवाज में एक खुशबू थी। जैसे वो जबान खोलकर आवाज से बात करे तो मेरी निगाह कभी मिटती गई उसकी जबान की तरफ, उसके चेहरे की तरफ। जैसी आवाज निकली तो मेरा दिल गवा देता था, ये आवाज बार बार सुनना चाहता। ये ती हस्ती, ये अजमत हस्ती को मैं देखी नहीं, ऐसी आवाज थी, मगर वो मुबारक है, मुबारक है। है मेरे आका, मेरे शोहर, वो मुबारक है। मैं देखना चाहती हूँ उसे मिलना चाहती हूँ। जब उसे देखी, उसके आंख की तरफ देखी, उसकी जबान की तरफ देखी, उसके चेहरे की तरफ देखी, उसके बाल की तरफ देखी, उसकी लिबास की तरफ देखी, हर चीज अनमोल है, वसीम है। जैसा मेरे आका का तर्जुमा करते गए वैसा बोलने लगे। तब तुम्हें देखे तो कैसा दिखता था? पूछे तो बोले जैसा मैं नजदीक को गई, नजदीक को जाने से मेरे आंख बस नहीं देखने के, मेरा आंख झपक कर सर झुक गया, क्योंकि चेहरे के अंदर इतनी नूरानी थी। वो आंख झुक कर झपक कर मेरा आंख झुक गई। ऐ मेरे बच्चों के अबू, वो चेहरा ऐसा है जैसा दूर से देखा, बात देखेंगे फिर देखेंगे क्या, जब सामने आ गए तो दिल गवा दिखा, और देखेंगे कहने पर हर बात में एक कशिश पैदा हुई, दिल के अंदर एक आवाज पैदा होगी, मैं किस तरह वो इंसान को हाथ छूऊं। वो शरीयत के बाप थे, हाथ छीने की तमन्ना थी उम्में, वो बच्चों की अम्मी के हाथ छीनेंगे, उनके कदम पकड़ेंगे, एक तमन्ना थी, मगर शरीयत के बाप थे मेरे रसूल ने। देखने गए, छीने नहीं दिए, दूर जैसा डिस्टेंस गए, आखा डिस्टेंस मेंटेन करते थे, औरत को छीने नहीं चाहते, क्योंकि उसमें हिजाब उतर गई थी, कुरान से आयत है हिजाब उतर था, औरत को डिस्टेंस में रखना। तो उस वक्त में वो माँ साहब पूछने लगे आंख कैसे है? जब उसके आंख कैसे पूछने लगे, ये भवां ही ना, पतले भवां थे, ये भवां कैसे है? पतले भवां थे, ये भवां बहुत पतले थे और ऐसे थे, वो भवां के अंदर जो बाल जो हलता था, उस बाल की किरण की वजह से मेरे आंखें बुझते थे। जैसा मैं दूर से देखी तो वो दो आबरू रख को थे, जैसा नजदीक जाकर देखी आबरू डिस्टेंस में थे। उसकी एक पेशानी, एक नूरानी पेशानी थी, वो पेशानी पर एक चमक थी। ऐ मेरे बच्चों के अबू, मैं उस हस्ती को मिला, वो प्यारा से नूर चेहरा मैं आज तक जत्ते मैं सफर करी, मैं आज तक देखी नहीं उस तरह की हस्ती को। ये बोलने लगे आंख कैसे है? तो बोलने लगती है आंख के, वो माँ साहब बोलने लगती, मेरे बच्चों के अबू, वो आंख ऐसे थे, वो आईब्रो से जाकर वो आंख काले, एकदम काले, वो काले के अंदर उसके अंदर टिपका था ना, लाइट ब्लूइश क्रीम दिखता था, उसके किरणों की वजह से देखने के वास्ते झपक होती थी, और मैं समझती थी तमाम कायनात का नूर उस आंख के अंदर दिखता था। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह
हजरत जी जैसा बोलने लगे अपने आंखों की तरफ इशारा दे रहे, वो ऐसे आंख थे, वो ऐसे आंख थे। तब उम्मे महमूद ने बोलने लगे, ऐ मेरा बच्चों की अब्बू, वो ऐसा चेहरा था, वो ऐसे आंख थे, उसकी मिसाल नहीं बोलते, अशकल के जैसे, अशकल अरबी का वर्ड, अशकल, अहल, अदहज, अहवर, अजजनचन कर बोलने 6 वर्ष बोले, उसके अंदर तारीफ करने लगे। जैसा तारीफ करने, वो आंख कैसे थे उसकी मिसाल आप तक में देखी नहीं। वो आंख के अंदर 3 कलर है, एक व्हाइट है, फिर एक ब्लैक है, फिर उसके अंदर एक रोशनी का एक टिपका है। ये 3 के बारे में उन्होंने बयान करना शुरू कर ले। वो ऐसे थे, मैं आज तक देख सकी नहीं। वो जो काला टिपका बीच में एक टिपका था, उस टिपके के अंदर मुझे मालूम हुआ 2 जहां का नूर इस बंदे के अंदर समा हुआ है। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे शौहर, मैं इस बंदे को मिलना चाहती हूँ। इस बंदा किधर से आया, इस बंदा किधर से आया, मैं ये समझती नहीं। जिस घर के अंदर आया, मेरा दिल चाहता है इस बंदे को भेजना नहीं था। ऐ काश मेरे ऊपर क्या गुर्बत हालत होगी थी, वो क्या होगा था, मेरी होश बेहोश होगी थी। जिसने सामने आकर खड़गा था, मेरी अकल दूर चल गई थी। मैं अगल डालकर कीली डालना था, मैं उसे अंदर रख लेना था। काश तू एक बार देख लेता तो तेरे हशर, तेरे भी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएंगी। वो ऐसा हस्ती था, उसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकते। जब बोलने लगे उसका जिस्म कैसा था, उसका जिस्म कैसा था, बोलने लगे जिस्म इस तरह था। जब वो हाथ फैलाया, हाथ की तरफ में निगाह रखी, अंगलियां लंबे लंबे थे, अंगलियां लंबे थे। वो हस्ती का अंगलियां लंबे थे और नूरानी थी। हर अंगली के अंदर एक नूर दिखता था। और ये जिस्म के ऊपर रग्गा नहीं दिखते थे, ओनली गोश्त दिखता था, रग नहीं दिखता, रग्गी नहीं दिसी। मैं ऐसा हाथ अभी कभी तक दिखा नहीं, इतना प्यारा हाथ था। अंगलियां लंबे थे, नाखून कट कर थे। वो चेहरा, वो हाथ की तरफ गई, मेरा हाथ बटाई, मिलाने के लिए बटाई, जा पकड़ेंगे सूची, तो वो मर्दे कलंदर ने हाथ वापस ले लिया। वो मर्दे कलंदर ने हाथ वापस ले लिया। जिस तरह हाथ वापस लेते ही मेरा दिल गवा दिया। नहीं पूछने लगे, अबू बकर बोलने लगे, माँ जी शरीयत का उसूल रखो, थोड़ा दूर खड़े, थोड़ा दूर खड़कर आका को देखो। अपना मुरीद सामने आकर बोलने लगे, माँ जी तुम्हारी मोहब्बत कायम है, तुम्हें मोहब्बत से देख रही है, हमें मानते हैं, क्योंकि हम जिस दिन से हमें मेरे आका के दामन पकड़े, उस दिन से हमारा घर कैसा हमें देखे नहीं, क्योंकि ये नूर की खुशबू से हमें जिंदगी करते हैं। मेरे पीर के खुशबू से मैं जिंदा हूँ। बोलने लगे, ये जिस दिन से इसका दामन पकड़ा, मैं उस दिन के बाद किसी को नहीं देखा। मेरा गवाह, मेरा जीना, मेरा सांस, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा पीरी पीर है, मेरा रसूल है। वो पूछने लगे, तो हस्ती है क्या? वो इसलिए वो हस्ती जैसा अल्लाह का प्यारा लाड़ीला नबी है, उसको नहीं बोले। किसे? उम्मे महमूद को नबी का तो नहीं बोले। तो हम बोलने का एक्सप्लेनेशन छीने नहीं दिए। उसूल था शरीयत, उसूल था शरीयत। पूछने लगे, अपना हाथ अंगलियां लंबे थे और हाथ बहुत नाजुक था और हाथ के ऊपर रग्गा नहीं दिखते थे और चमकदार था, उसके ऊपर रोशनी थी। पूछने लगे, फिर पूछने लगे उन्होंने किस चेहरे के अंदर क्या था? तो एक दाढ़ी शरीफ थी, एक दाढ़ी शरीफ थी, मूंछ होठ के ऊपर कटोक थे, और वो जब मुंह खोला तो फूल खिले सका था। हाय हाय, जब मेरा आका ने ज़बान मुंह खोलकर बात करने लगे तो ये गुलाब के फूल के जैसा चेहरा दिखता था, ऐसी नूरानी चेहरा दिखता था। वो चेहरे को देखना है, बार बार दिल गवा देता है, बार बार में देखना है चेहरे को। तो ऐसा हुआ, जब वो फौरन बंद कर बैठ गया, जैसा बंद कर अपना सर नीचे झुकाया तो उसके चेहरे के ऊपर एक फूल की कली के जैसा दिखता था और वहां था चेहरा, और खार था, वसीम थी, कसीम था, देखने के लिए तरस जाती थी दिल में। पूछने लगे फिर अपना बदन कैसा था? बदन बोले, मैं ऐसा बदन अब तक नहीं देखा। सीना चौड़ा था, सीना चौड़ा था, सीना चौड़ा था, पेट नहीं था, पेट और सीना एक लेवल का था, पेट और सीना एक ही लेवल का था। ऐसा नहीं पेट सामने आ जाओ, ऐसा नहीं कि पेट अंदर चल जाए, ऐसा नहीं, पेट और सीना एक लेवल के थे।
वो पेट और सीना एक लेवल कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जा कर उम्मे मामूद ने उनके तरफ तवज्जा कर इतनी मोहब्बत से देख रही, इतनी मोहब्बत से उनके ऊपर फिदा हो रही, बोलने लगे उनके दाढ़ी शरीफ मुबारक कैसी थी। बोले आज तक वो दाढ़ी शरीफ इस तरह थी, आज तक वो दाढ़ी शरीफ इस तरह तक थी। मैं बहुत से लोगों की दाढ़ी शरीफ देखी मगर उनकी दाढ़ी शरीफ मैं आज तक देखी नहीं। वो बाल है या कोई है मैं अब तक जानी नहीं। वो ऐसे लहरते थे बाल ने, उनके जुल्फे पीछे से सामने आकर लहरते थे। ये जुल्फे की तरफ देखूं या दाढ़ी की तरफ देखूं, ये चमकते थे, क्रिस्टल लाइट के जैसा चमकते थे। ये ऐसे थे, दुनिया के बाल ही नहीं थे, वो किधर से इसे मालूम नहीं था। इस तरह के उसका चेहरा था। जब वो मुस्कुराने लगे तो उनके दांत के बेहतरीन ऐसी एक चुनना भी उसके सामने बेकार था और चांद भी उसके सामने बेकार था। जैसा मुस्कुरा कर दूध पीने के बाद मुझे तनावुल करने के बाद बोले बच्चे को पिलाने के टाइम मुस्कुरा कर बोले उनके दांत के किरण जाकर दीवार के ऊपर बिजली की तरह सा पड़ते। हाय हाय, मेरे आका का तस्वुर, मेरे आका का सीरत, मेरे आका का सूरत, इस तरह हमें जो पाक बंदे उम्मती बनकर इस दुनिया में हैं, जो इस हस्ती, जो इंसान इस्लाम भी कबूल करेंगे, वो तारीफ को तारीफ कर रहे हैं, तो हम लोग हमारे आका के लिए क्या दे रहे हैं? हम लोग हमारे आका का बयान सुनने में नींद आती है। हम लोग हमारे आका के बारे में कुछ ना कुछ बयान सुनने के टाइम में बढ़ती नींद से सोती, बेजार की चीज बैठती। अरे जिसके बारे में बयान करें, चेहरे को जब नूर नहीं मिला, खुशी नहीं मिले, तो उन्हें नबी का उम्मती बनकर बेकार है। उसका नाम नबी के बारे में हमें जब सुन रही तो हमारे अंदर एक नूर पैदा होना। किसके बारे में सुन रही? वो ताजदार मदीना, हमारे नबी कल आखिरत में शफाअत करने वाले, उनके बारे में जब सुने हमारे अंदर बदन में खुशबू पैदा होना, हमारे अंदर में तन में मन में उनके बारे में मोहब्बत फैल कर रहना। ये छोड़ डालकर हमें वो सुनने के टाइम में बेखदारगी से बैठना, सुस्ती से बैठना, ये करेंगे तो खुदा की कसम उसका उतना गद्दार कोई नहीं। क्यों? मेरे आका, हमारे तुम्हारे आका कल क़यामत के दिन अशर के मैदान दौलत भूल जाए, इस दौलत की लाख बार इस दुनिया को, आखिरत में कौन आएगा? तुम्हारे बाप भी देंगे, तुम्हारी माँ भी देंगे, तुम्हारे भाई भी देंगे, तुम्हारी बीवी भी देंगे, कोई भी तुम्हारा खानदान नहीं आएगा। आया मेरा मुस्तफा आएगा, तो जहां पर खड़ेगा क़यामत के दिन हर उम्मती को सामने भेजेगा। वो खाने में इतना तनाव करेगा, मेरे उम्मती पहले खाना बाद में मैं खाना, तो ये आखिरत में यही काम करेगा। तुम जन्नत की जाओ, तुम्हें आगे बढ़ो, मैं बाद में पीछे आऊंगा। फिर उसके बाद उम्मे मामूद ने अपने तारीफ को तारीफ करते थे मेरे आका की। उस तारीफ के अंदर वो सुनने वाले की आंखों में आंसू आना शुरू हुआ। वो दीवाना था, वो मेरे आका का दीवाना था, नाम भी नहीं मालूम था। जैसा वो मां साहब ने तारीफ को तारीफ के बातें बोलती थी, उम्मे मामूद ने बोलती थी, अब वो मामूद की आंखों में आंसू आना शुरू हो गया। ऐ मेरे बच्चों की अम्मी, थोड़ा मेरी क्या गफलत थी, मैं बकरियां चराने चल गया था ना, काश मैं 1 घंटा आगे आया था तो वो खुशबूदार को इंसान को मैं भी देख लेता ना, मेरा जी भर जाता ना, मेरे आंखों से देखा तो मैं उसे मिल लेता ना। तो नहीं छीनी, मैं तो लपट लेता उसके साथ। मैं मामूद, वो हस्ती है का तो एड्रेस भी पूछी ना, वो कहा है मालूम नहीं ना। मेरे अंदर में अब कभी बकरियां नजदीक में रहूंगा, बकरियां चराने दूर नहीं जाऊंगा। वो आएगा फिर मैं मिलूंगा, उसके तस्वीर में मैं बैठूंगा। वो कौन है, वो कौन है? बोले जी उसका नाम तो मैं पूछी नहीं, वो तो मुबारक है। वो मुबारक है, वो मुबारक हस्ती सर कदम रखने से हमारा घर नूर पर नूर होगा, हमारे घर के अंदर बरकत पर बरकत होगी। आज क्या गफलत कर लिया है बच्चों की अम्मी, मैं क्या गफलत कर लिया।
चंद अरसे तक उनकी याद में रोना पड़ा, बच्चे रोना पड़ गए। घर के अंदर बच्चे हर दिन याद करते थे, वो मुबारक कब मिलेगा, वो मुबारक कब मिलेगा। हम लोग गए, मेरे आका के बारे में कुछ मिलाद करने में हमें शर्म आती। वो जो हस्ती हमने दिया दुनिया में अता किया, नमाज से लेकर, कुरान से लेकर, अल्लाह से लेकर, फराइज से लेकर, सुन्नतों से लेकर हमने अता कर दिखा दिया इंसानियत किस तरह जीना है। अगर दिखा दिया, आज उसके बारे में करने ताबे। मैं खुदा की कसम में समझता हूं सबसे बड़ी ईद मेरे आका ईद मिलाद है। सबसे बड़ी ईद मिलाद है। हर घर के अंदर उनकी दुआ जरूरी है, हर घर के अंदर उनकी तारीफ जरूरी है, क्योंकि खुदा को भी पसंद है। मेरे मोहम्मद की तारीफ खुदा भी पसंद करता है। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें एक पर छींटे छींक ले, हम सब एक एक ग्रुप बनकर छींटे छींक ले रहे हैं। हाँ, शिरक और बिद्दत के दरयान पर हमें चलते हैं। आप बोलने का रकम से बोलकर उसे दूर कर सकते हैं, मगर नबी के नाम से फसाद, नबी के मिलाद से फसाद, खुदा के कसम उससे मुनाफिक कोई भी इंसान नहीं उनके बारे में। ये नहीं बोलूं रोड पर निकलो, मैं ये नहीं बोलूं तुम्हें ढपटी मार के फिरो। अरे घर में तो उनका नाम आते ही पैदाइश के दिन या वफात का दिन मालूम होती, उनके घर में कुछ खाओ पियो, दूसरों को पिलाओ। खुश नसीब हम लोग हैं जिसने हमें अता किया दीन मुस्तफा, जो दीन सच्चाई से चलना है, जिस इंसानियत में तमाम मखलूक जो भी जीने, इनसे सबसे बेहतरीन दीन है वो इस्लाम है। वो इस्लाम है। क्यों? इस्लाम मेरे आका ने दिए हमें। कोई माइक के लाल सामने लाकर खड़ा कर दो, आप बोलते तुम्हें अल्लाह से देखना, अल्लाह से करना है। बेशक अल्लाह हमें अता किया। कोई मैक के लाल मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, मैं पूछूंगा उससे, अल्लाह तू जानता था, तू देखा था, मुझे दिखा दे, बाद में मैं मान लेता हूं। क्योंकि अल्लाह ना तो हम देखे ना कोई नहीं देखे, देखे तो देखे मेरे मुस्तफा देखे। मेरे मुस्तफा उस दिन आवाज उठे, ऐलान हुआ, ऐ लोगों 306 बुतों को पूजा करने का छोड़ दो, ये अल्लाह को मानो, ये अल्लाह को मानो। बोले कि नहीं? आज ये अल्लाह की इबादत हम कर रहे हैं। अगर उस वक्त में मेरे आका ने फरमा देते तो 2 अल्लाह को मानो, अगर तो तुम्हें करना था आज। कौन बोले अल्लाह है अगर तुम ना? कौन दिखाए तुम्हारा रास्ता? 5 वक्त की नमाज कौन ले लेकर है? कुरान कौन ले लेकर है? अल्लाह को तुम्हें देखे, मगर जिससे रहबर बनाया, जिस पीर के अदा नहीं करया, तो डायरेक्ट उसे अटैच करने जाता है। तेरे औकात क्या है वो अल्लाह को तो लगने के लिए? कुछ नहीं तेरे औकात नहीं है अल्लाह तक जाने की। क्योंकि पहले तेरा सीढ़ी तेरे बाप के तक जा, बाप से उसके बाप के तक जाता है, तो खुद बाप को सीधा देखें तो वहां क्या देखेगा? तेरे अदब, एहतराम, ईमान तेरा सच्चाई है, खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जा सकते। आज हमें मानते नहीं। ईद मिलाद करने के लिए कई फिरके की बात, ईद मिलाद करने के लिए फिरके की बात, उन्हें उठाना इन्हें उठाना। अरे हम सब उस वक्त में आका ताजदार मदीना जिस वक्त में हयात में थे, उस वक्त में अबू बकर भी कर को, उस वक्त में उमर फारूक भी कर को, अली करमल्ला वजह भी कर कोई। ईद मिलाद का माना क्या है? क्या है? उन्हें पैदाइश के दिन को खुशी करने का, वफात के दिन का हमें उनके ऊपर कुछ ना कुछ फातिहा की सूरह ये वो पढ़कर उनके ऊपर एहतराम करने का, हमारे औकात ने वो भेजने की। वो याद करने से बोला मेरे दीन को उठा कर गया था, मेरा दीन उठा कर पढ़ रहा मेरा बच्चा। मुझको रखने वाली दीन है, किताब मुझको रखने वाली दीन है। अब वो दीन क्या है? इसको अमल करो तो इस किताब को और अहले बैत का 2 चीज को थाम लियो, तुम्हें आखिरत में जन्नती ही। अब ये 2 चीज हमें नहीं करे है, छोड़ डाल हमारे तरफ हमारा रास्ता, उनका तरफ उनका रास्ता, आदमी का अलग 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 रास्ता बोलने के बाद तुम्हें मालूम होता है। इसलिए कुरान हमारे से कौन कांटेक्ट होकर ना दिखाया रास्ता अल्लाह, पहले उसकी इज्जत करो। मुसीबत में पड़कर रोता था, खाने खाने को तरस जाता था, दीन इस्लाम छोड़कर काफरों की जोड़ में फिरता था। ये तमाम छोड़ डालकर कोई एक हजरत को हाथ पकड़ने के बाद तू टोपी पहनने वाला बन गया, तू नमाजी का लिबास पहनने वाला बन गया, दाढ़ी छोड़ने वाला बन गया। उसके बाद बोलने लगा मैं इनको मानता हूं, मैं अल्लाह कुछ मानता हूं। अरे भड़वे,
दिखाया कौन? पहले इससे आ, इससे लगा तूने खुश होता है, जिसका दीन का काम कराना है, जिसका दीन का एहतराम सिखाया, आज ये टोपी पहनना, दाढ़ी शरीफ छोड़ना, ये सब सिखाया, तो मैं इसे केयर करता है, मैं उसे केयर करता हूँ, तो उन्हें सुन लेता है, उन्हें बोलता है तू एक नंबर का चोर है, लफंगा है। क्योंकि आने के टाइम में दरवाजा खोल कर बेटे, दीवार उंगल का क्या बोलती? अल्लाह अंदर है, 7 आसमान के ऊपर है, तो दुनिया के हैस वाले को तू मानिया नहीं, तो बात 7 आसमान वाले मानता तू। इसके आने के टाइम क्या करना, दरवाजा किल्ली खोल कर, तो क्या के लिए भाई घर वाला है कभी ला पड़को है, दीवार उंगल का क्या बोलती? चोर कभी। इन्हें डायरेक्ट अल्लाह जाके मिलता, इसे छोड़ डालता, पूरा सीख लिया, अब इन्हें बराबर नहीं, उन्हें डायरेक्ट उन्हें छोड़ डालता कि जिसके वास्ते उन्हें खाना पानी छोड़कर अल्लाह के रास्ते उन्हें काम सिखा रहा है, दीन सिखा रहा है, तो उसकी बात को छोड़ा इसकी बात मान लेता कि ना। पहले बोल तेरी औकात तू सीख ले, तो पहले कान था अब क्या बना, पहले तो कान था अब क्या है, तो वो बनाया कौन? मैं उसके अंदर तासीर दिया था और ये हिदायत दिया था, उसके हाथ पकड़ने से तू यहाँ तक आया, मैं उसके अंदर तासीर देता हूं तो उन्हें मिलता ना चाहिए, तो पहले उसकी इज्जत कर। इस तरह पहले हमें मोहम्मद की इज्जत करना। बाद है अल्लाह ताला खुश हो रहा है। जब मोहम्मद को छोड़कर हमें डायरेक्ट अल्लाह को बोले तो अल्लाह ताला नाराज होता है। जिस मोहम्मद के लिए पैदा करे आना ये है कि दीन मुस्तफ़ा को फैलाना, अल्लाह वो एक अल्लाह की इबादत करना, और वो कलाम शरीफ, ये कुरान है, कुरान कलाम शरीफ क्या वास्ते है? कुरान नथिंग बट इंसानियत, कुरान इज नथिंग बट इंसानियत, लाइफ ऑफ इंसान। एक इंसान की जिंदगी कैसी है लिखी इसमें, ये पढ़ने को इसे अमल कर लिया तो जिंदगी कर ले सकता है, ये पढ़े नहीं सका रहा तो टेढ़े कामा करता रहता है। माँ की इज्जत क्या, बाप की इज्जत क्या, बीवी मर गई तो और शादी कर सकती क्या, नहीं बच्चे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मर गया, मेरे बच्चे थी, वो प्रॉपर्टी किसे जाना है, ऐसा उसमें अंदर दीन हमारा दुनिया में किस तरह हमें चलना वो लिखो है सब। उसके बाद अल्लाह के रसूल बोले मेरे कुरान को थाम लियो और मेरे अहले बैत को, तुम्हें जन्नती बन सके। अहले बैत कौन है? अल्लाह के रसूल के खानदान और सहाबा, हमें उनको थाम लेना, और सहाबा से लेकर आज तक जो गुजरान दिन स्टेप बाय स्टेप है, हमें किसी को छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारे औकात नहीं है दूसरों उनके ऊपर अंगली दिखाने, क्योंकि तो पहले हमें अच्छे नहीं, उनके क्या दिखाएंगे। इसलिए हमें मोहम्मद को इज्जत करना। तब अबू मामूद ने बोलने लगे मैं मदीने को जा रही, थोड़ा बाजार में काम है, कुछ परचेस कर लेकर नहीं जाना। अपनी बीवी को इजाजत दिए मदीने की तरफ, अपनी बीवी को इजाजत दिए मदीने की तरफ। जैसा उम्मे मामूद ने गए, अपने बच्चे को लेकर गए, परचेजिंग करते थे मदीने शरीफ के अंदर, मदीने शरीफ के अंदर परचेजिंग करते थे, सौदा ले खड़े थे, खड़ते ही उनके सामने से गुजर अबू बकर सिद्दीक का हुआ। जैसा उनके सामने से अबू बकर सिद्दीक गया, बच्चा बोलने लगा अम्मी जान मिल गया वो हस्ती, अम्मी जान थाले मारने लग गया बच्चा। अब ऐसे कुछ मिल जाता है, लड्डू की गिड्डू की खिलौने मिल जाते हैं, सब उछलने लगा अम्मी जान मिल गया हस्ती, मिल गया हस्ती। बेटा इतना खुश क्यों है? जिस दिन वो मुबारक इंसान आया था वो इंसान की जोड़ में यह हस्ती था, वो हस्ती था, ये मुबारक जो इंसान आया था वो इंसान की जोड़ में हस्ती था। चलो चलो पहले सौदा छोड़ दो, पहले पकड़ी उनको देखा। तो वो बच्चा देख कर, वो माँ देख कर जाए, अबू बकर सिद्दीक के सामने जा खड़े, सलाम करे, सलाम करते ही वो हस्ती कहाँ है? तुम्हें एक टाइम आए थे, दूध पिए, हमें पूरे दूध पिए, एक हस्ती, वो तो कौन हस्ती, कौन वो? पूछे अबू बकर, मालूम नहीं सका कौन वो है, हम तो नाम मालूम नहीं, मगर हमें नाम रखी मुबारक, ना नाम मालूम नहीं है मगर नाम हम दिए है मुबारक। वो मुबारक इंसान का है, वो इंसान को मिला है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलने लगा अच्छा मुबारक इंसान, आओ मेरे जोड़ में बुला लेकर। अबू बकर तमाम काम छोड़ दिए, वो दोनों शख्स को लेकर मस्जिद नबवी की तरफ ले गए। मस्जिद नबवी के अंदर बैठे थे उज्जैन, सभी एक ही लिबास में थे, सभी अपने मुरीदा भी पीर भी एक ही लिबास में थे। उसमें कंफ्यूज होने लगा, इसमें कोई चेहरे भी सबके भी एक मुट्ठी दाढ़ी, सभी एक लिबास, सभी उजला दामन, सब डायरेक्ट पूरा अमामा उजले पल्ले बड़ी होती। अब इसमें कहाँ गया? तो अबू बकर सिद्दीक इतने चेहरों में वो चेहरा नहीं दिखेगा, खाली वो चेहरा जुल्फे गिल्फे बयान करने के टाइम हलिया तो उसके चेहरे की बिजली पड़ती ना, पहचान ले हुआ